Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Ms. Faiza Kiran back to you with a new topic from chemistry, that is electrochemistry. Let's have a look at today's learning objectives. At the end of the video, you all will be able to identify electrochemistry and the related terms, to understand and describe the process of electrolysis, to understand how molten sodium chloride is being electrolyzed, and to state the Faraday's laws of electrolysis. What is electrochemistry? The term is telling itself a lot. Electro means electric current and chemistry means chemistry. So, how the electricity and chemical change are involved in our daily lives, from the laboratory to the cell phones we are holding in our hands right now. Let's see the definition of electrochemistry. It is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reaction. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल चेंजेस के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताती है, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज एनी केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड द स्टडी ऑफ दीज चेंजेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. There are few terms that you must know in order to understand the electrochemistry. First one is electrolytes. Those chemical compounds which conduct electricity in molten condition or through in its aqueous solution with chemical change decomposed. ऐसे सारे chemical compound जो अपने molten state में या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इस प्रोसेस में उनके अंदर कोई केमिकल चेंज होता है, that can be decomposition, they are called electrolytes. Electrolytes के एग्जाम्पल में acids, alkalis, salts that are dissolved in water और molten salts are included. Non-electrolytes इसका opposite है, all the chemical compounds which do not conduct electricity in molten or in aqueous solution. ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो मोल्टेड फॉर्म में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो. इनके एग्जांपल्स में शुगर, पेट्रोल, डिस्टिल वाटर और अल्कोहल इंक्लूडेड है. कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ नॉट केमिकली चेंज ड्यूरिंग द कंडक्शन. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे लेकिन उस कंडक्शन के प्रोसेस में उनके खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, इंक्लूडिंग मेटल्स एंड ग्रेफाइट. Non-conductors are the substances that cannot conduct electricity like sulfur, phosphorus, diamond. Electrolysis. The term is a combination of two words. Electro means electric current, lysis means breakdown. So the name is suggesting a lot that when something is breaking down using electric current, it is called electrolysis. A process in which movement of the ions takes place towards their respective electrodes to undergo chemical changes under the influence of an applied electric current. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो इट डिकम्पोजेस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं. हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. So negatively charged ions that are called anions are attracted towards anode, and the positively charged ions known as cations are attracted towards negatively charged electrode that is cathode. और ये कब होता है? जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है. एक पिक्चर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की. इट इज़ अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिंग down and the electric current is converted into chemical energy. सिल्वर नाइट्रेट की यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स आर द मेटेलिक प्लेट्स और रॉड्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और अदर मीडियम. इलेक्ट्रोड्स जो है वो मेटल के बने हुए होते हैं और या तो ये मेटेलिक प्लेट्स होते हैं या रॉड्स होते हैं दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव एनी मीडियम. These are of two types. Cathode is an electrode that is connected to the negative terminal of the battery, and positively charged ions, cations, are attracted to cathode.
Anode is the electrode that is connected to the positive terminal of the battery, and negatively charged ions, anions, are attracted to anode. इलेक्ट्रोलाइसिस के स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल होता है. तो इट स्टार्ट विद द स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस. पॉजिटिव आयंस are termed as cations, negative ions are termed as anions. Positive ions move towards the negative electrode cathode and negative ions move towards positive electrode anode. फिर क्या होता है, कैथोड पे क्योंकि पॉजिटिव आयंस मूव किए हैं तो पॉजिटिव आयंस ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, तो कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन. जबकि दूसरी साइड एनोड पे जो आयंस मूव किए हैं दे हैव नेगेटिव चार्ज. सो नेगेटिवली चार्ज मीन्स दे हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. वो एनोड पे जाके अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या रिमूव करते हैं एंड दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब फैराडेज ने 2 लॉ दिए थे फॉर द डिपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड. पहले में क्या है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. पहले में क्या हो रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो उसके कितने पॉजिटिव आयन कैटाइन और कितने नेगेटिव आयन एनाइन उसके इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और जितने टाइम के लिए करंट दिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं W is directly proportional to A into T, where W is the amount of the substance deposited or liberated, A is current in amperes and T is time in seconds. जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं तो देयर इज विल बी अ कांस्टेंट एडेड दैट इज कैपिटल Z. W is equal to capital Z into AT. This is the electrochemical equivalent. It is the weight or amount of the substance deposited or liberated when 1 coulomb of electric charge is passed through an electrolyte. जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से 1 कोलम इलेक्ट्रो चार्ज पास किया जाता है तो उसका जितना सब्सटेंस लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पे वो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z एंड एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर कूलम्स. और ये हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है. Let's see the second Faraday's law of electrolysis. When the same quantity of electricity is passed through several electrolytes, the mass of the substances deposited is proportional to their respective chemical equivalent or equivalent weight. ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड की है. जब 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट एक सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो फिर उनमें जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज़ में लगाया है, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट. अब में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया जा रहा है फॉर द सेम टाइम. तो अब जो भी अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर या सल्फेट, एल्यूमिनियम या नाइट्रेट अपने इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो इन मेटल्स के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. That's it. I hope you have clearly understood each and everything. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.